Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In the previous lecture we have studied structure and functions of cell. In this lecture we will study cell division. Now start the lecture and understand what is cell. See, the body of every living organism is made up of a smallest unit known as cell, and this cell is basic structural and functional unit of our living organisms. Cells usually have ability to reproduce through cell division, and in this lecture we will study this cell division in depth, right? And all biological activities of living organisms take place within the cells, and the science of studying cell is known as cytology. In the previous lecture we have studied different organelles of the cell in depth. In this lecture we will focus on cell division. So let's understand what is cell division. See, cell division is the process by which parent cell is divided into two or more cells known as daughter cell, or we can say that cell division is a process in which one cell is divided into two or more cells. और इसी वजह से ही जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या होती है, ग्रोथ होती है, right? For an example, right, this is a cell, right, and through cell division this cell is get divided into two different cells, right? 1 minute. So through cell division, this, right, this cell divided into two cells, and this process is known as cell division. अब cell division की वजह से ही जो जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है, ग्रोथ होती है, साथ ही साथ जेनेटिक स्टेबिलिटी भी मेंटेन होती है. तो कुल मिलाकर ये जो सिंगल सेल होती है वो जाकर किसमें, डबल सेल में, राइट? दिस सिंगल सेल इज गेट divided into two or more cells is known as cell division, right? And why this cell division is important? क्योंकि अगर हम देखते हैं तो जो जितनी भी through different activities, right, through different activities different cells are damaged. तो जो डैमेज सेल होती हैं उनकी रिपेयर के लिए या फिर ग्रोथ के लिए हमारी बॉडी में नई सेल्स का बनना ज़रूरी है, और हमारी बॉडी में नई सेल्स जो हैं प्रोड्यूस नहीं होती हैं, राइट? बल्कि एक जो सेल होती है वही जो है दो और या दो से अधिक, मोर देन टू जो सेल्स है उसमें क्या हो जाती है, गेट डिवाइडेड हो जाती है. This is the reason if you have injury here, right? So after some times here you will get the same type of skin, which means that here same type of similar cells would be formed because of cell division. If there is an injury here, right? So after some time this type of skin would be here because यहाँ की जो सेल्स हैं वो यहाँ से डिफरेंस है, यहाँ की जो सेल्स हैं वो हमारे चिक्स की जो स्केल्स है इनसे डिफरेंस होती हैं. तो वेन एवर देर इज अ सेल डैमेज, सेल डिवीजन की वजह से ही जो है सेल क्या होती हैं, नई सेल्स फॉर्म होती हैं. इसी वजह से जहाँ पर भी इंजरी होती है वहाँ पर उसी प्रकार की सेल क्या होती हैं, फॉर्म होती हैं. तो सिंपली अगर हमको सेल डिवीजन समझना हो तो सेल डिवीजन क्या है, सेल डिवीजन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू cells, right, in the process of division of one cell into more than two cells, right? So this is the cell division. अब इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स की बात करते हैं. सबसे पहली चीज सेल डिवीजन क्या है. सेल डिवीजन इज द प्रोसेस इन विच a single cell is get divided into two or more cells, right? Here one is parent cell and second is daughter cell. तो cell division is the process by which पेरेंट सेल या जिस सेल में डिवीजन होता है उसको पेरेंट सेल कहते हैं, डिवाइडेड इनटू टू और मोर सेल्स जिसको क्या कहा जाता है, डॉटर सेल कहा जाता है. सेल डिवीजन is such a cycle of growth and division allow a single cell to form structure consisting millions of cells.
कैसे? देखिए, जो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन इज सच अ साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन, विच मीन्स ये है कि सबसे पहले ये जो सिंगल सेल होती है, राइट, सिंगल सेल की क्या होती है? ग्रोथ होती है, राइट। ये जो सिंगल सेल है ये ग्रोथ होती है, और फिर जाकर ये जो सेल है ये किस में? दो सेल में जाकर क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है, राइट। और इस तरीके से 2 न्यू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। अब ये जो डॉटर सेल है अगेन इसकी क्या होगी? ग्रोथ होगी, एंड दिस डॉटर सेल would be get divided into more than 2 cells. Now this cell will grow, right, and this cell will get divided into 2 or more than 2 cells, and in this process a single cell may be, right, a single cell, right, a single cell may be converted into a structure of millions of cells, right. So cell division is such a cycle of growth and division allow a single cell to form a structure consisting of millions of cells, right. और जिस सेल में डिवीजन होता है नॉन एज पेरेंट सेल, और जो न्यू सेल फॉर्म होती है उसको डॉटर सेल कहा जाता है, राइट। सेल डिवीजन यूजुअली अकर्स एज अ पार्ट ऑफ लार्जर सेल साइकिल, जिसमें सबसे पहले जो सेल है वो 2 और मोर देन 2 सेल में स्प्लिट हो जाती है, राइट, जिनको डॉटर सेल कहा जाता है, राइट। और अगर हम देखें तो the newly formed daughter cells could themselves divide and grow, give rise to new cell population that is formed by division and growth of single parent cell, right. To its क्या हो जाएगा? Descental हो जाएगा, and in this way a single cell to be formed as a structure of consisting of millions of cells. Now most important, what is the importance of cell division, right? Cell division plays an important role in physical growth, क्योंकि physical growth cell division के without possible ही नहीं है, right? तो फिजिकल ग्रोथ में चाहे वेट में इंक्रीज हो, हाइट में इंक्रीज हो, या ऑर्गन्स की क्वालिटी में इंक्रीज हो, राइट, तो सेल डिवीजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फिजिकल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, regeneration of damaged tissues. For an example, you are playing and there is an injury in your hand, your cheek, in your knee, right? So after some times your injury would be fulfilled, right, because of the सेल डिवीजन। ग्रोथ ऑफ न्यू ऑर्गन्स, जैसे आपकी एज इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपके ऑर्गन्स भी क्या होंगे? ऑर्गन्स में भी ग्रोथ होगी। एंड सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस एंड अदर animals. So cell division plays an important role in physical growth, regeneration of damaged tissue, growth of new organs, and sexual and asexual reproduction in humans and other animals, right? Virtue observed cell division for the first time. Now understand what is cell cycle. See, the cell cycle refers to the series of events that take place in cell, resulting in duplication of RNA, right, duplication of RNA and division of cytoplasm and organelles to produce 2 daughter cell. अब देखिए, in the previous lecture we have studied the structure of cell. This is a cell and this is the nucleus, right? यहाँ पर जो पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। यहाँ पर जो पाया जाता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और जो साइटोप्लाज्म में डिफरेंट क्या होते हैं? ऑर्गेनेल्स होते हैं। और सेल साइकिल क्या होती है? सेल साइकिल में सबसे पहले तो सेल साइकिल इज द प्रोसेस ऑफ सीरीज ऑफ इवेंट्स, जिसमें सबसे पहले क्या होगा? इस सेल का जेनेटिक मटेरियल है उसका क्या होगा? डुप्लीकेशन होगा। क्योंकि डुप्लीकेशन होगा तभी तो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है दैट वुड ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो यहाँ पर जो पूरी के पूरी जो जितने भी डीएनए उसका क्या होता है? डुप्लीकेशन होता है। जैसे यहाँ पर जो 2 ट्रेड्स हैं तो उनका क्या हो जाएगा? डुप्लीकेशन हो जाएगा। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में जो है उसके बाद में इस सेल का
और जो जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनका पूरा का पूरा क्या हो जाता है, जो साइटोप्लाज्म है और ऑर्गेनेल्स हैं उनका क्या होता है, डिवीजन हो जाता है, जिससे 2 डॉटर सेल्स क्या होती हैं, फॉर्म होती हैं। उदाहरण के लिए, राइट, लेट्स सी हियर, दिस इज अ सेल, राइट। अब इस सेल में सबसे पहले जो यहां पर आकर आप देख रहे होंगे, राइट, सो दिस इज अ सेल, राइट, ओवर हियर द डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल स्टार्ट्स। तो यहां पर जो सिस्टर क्रोमोसोम है वो फॉर्म होते हैं, राइट, जो रेड है और ये ग्रीन में आपको दिख रहा होगा, ये सिस्टर क्रोमोसोम हो जाएंगे। फिर ये जो सिस्टर क्रोमोसोम है ये जो है पिंडिकल्स के द्वारा क्या किए जाएंगे, अपनी ओर खींच लिए जाएंगे। इस वजह से इनमें से जो हाफ यहां पर देखेंगे, ये हाफ जो है सेंट्रोसोम्स क्या हो जाएंगे, इस तरीके से 2 भागों में डिवाइड हो जाएंगे और फिर ये सीधे होकर क्या हो जाएंगे, एक सीधी रेखा में आ जाएंगे और फिर यहां से डिवीजन हो जाएगा। इन दिस वे 2 सेल्स फॉर्म हो जाएंगी और इस पूरी की पूरी प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। तो सेल साइकिल रिफर्स टू द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन अ सेल रिजल्टिंग इन डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स टू प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल्स। The phases of cells. So there are 2 primary phases in the cell cycle. First is interphase and second is M phase या mitosis phase. जो सेल डिवीजन एक्चुअली होता है वो किस में होता है, एम फेज होता है, राइट। सो द सेल डिवीजन अकर्स इन एम फेज एंड इंटरफेज इज द टाइम लैप्स बिटवीन two consecutive M phases. So let's understand interphase. What is interphase? Interphase is the time lapse between 2 successive M phases of the cell division, जिसको मैंने अभी आपको बताया था। तो interphase क्या होता है, right? Interphase is the time lapse between 2 successive M phases of the division. What is the meaning of it? जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो डीएनए है या जेनेटिक मटेरियल है उसका डुप्लीकेशन होता है, फिर सिस्टर क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं, राइट। वो फॉर्म होके क्या होते हैं, जो दोनों पिंडिकल्स होते हैं उनके अपोजिट डायरेक्शन पर चले जाते हैं। तो ये क्या है, ये सेल डिवीजन की प्रोसेस है और इस सेल डिवीजन की प्रोसेस के बीच में जो टाइम लैप्स होता है, राइट, उसको ही क्या कहा जाता है, उसको ही इंटरफेस कहा जाता है। जैसे यहाँ पर अगर आप दिख रहा होगा अगर आपको छोटे में, तो ये क्या है, इंटरफेस है, राइट। अर्थात जो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं या डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें जो गैप लगता है, फॉर एन एग्जाम्पल, उसको ही क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं, राइट। तो यदि ये एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाए तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। इंटरफेस इज द टाइम लैप्स बिटवीन two successive M phases of the cell division, and the cell prepares for division, grows, DNA replication takes place, right। इस फेज में ही क्या होती है, right, in this phase cell grows, DNA replication जो है इसमें ही होता है। interphase is further divided into G1, S1 और G2। तो सिंपल है, interphase is the time lapse between 2 successive M phases of cell division, and in this phase cell prepares for division, grows and DNA replication takes place। जो interphase है उसकी पहली जो स्टेज है या पहला जो फेज है उसको क्या कहा जाता है, G1, और उसको क्या कहते हैं, गैप 1। सेकेंड हो जाएगा सिंथेसिस फेज एंड थर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर, G2 फेज और गैप 2, और थर्ड होता है G0। इन सब में हम अंतर समझेंगे। सबसे पहला क्या हो जाएगा, G1 फेज और गैप 1, राइट। तो G1 फेज और गैप 1 इज द गैप बिटवीन प्रीवियस मिटोसिस एंड DNA रेप्लिकेशन ऑफ द नेक्स्ट साइकिल। तो जो प्रीवियस मिटोसिस या प्रीवियस डिवीजन हो चुका है तथा नेक्स्ट के लिए जो डीएनए का या जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन होगा उसके बीच के टाइम को क्या कहा जाता है, G1 कहा जाता है। तो G1 इज द गैप बिटवीन प्रीवियस मिटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ द नेक्स्ट साइकिल। नेक्स्ट एस फेज, और इसको क्या कहा जाता है, सिंथेसिस फेज। तो एस फेज और सिंथेसिस फेज। In the synthesis phase, DNA replication takes place. The DNA content of the cell doubles and centrioles
डुप्लीकेट्स, राइट. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो रिमेन्स क्या होते हैं, सेम्स होते हैं. तो जो सिंथेसिस फेज होती है इसमें ही डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, अर्थात जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डबल हो जाता है, साथ ही साथ सेंट्रियोल्स विच इज सेल ऑर्गेनेल्स उसका क्या होता है, डुप्लीकेशन हो जाता है, बट जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेम ही रहते हैं. अब उसके बाद में क्या आता है, G2 और G2 फेज हो जाएगा और गैप 2. तो G2 और G2 फेज और गैप 2 फेज, द सेल कंटिन्यूज टू ग्रो एंड प्रिपेयर्स फॉर मिटोसिस. तो सेल का ग्रो होता है और मिटोसिस के लिए क्या होती है, प्रोसेस होती है. प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस, दिस इज द इंपॉर्टेंट. यहाँ पर सेल डिवीजन के लिए प्रोटीन सिंथेसिस होता है, राइट. तो ये दूसरा फेज हो जाएगा. यदि आपसे पूछा जाए कि when the protein synthesis takes place, तो protein synthesis takes place in G2 phase और gap 2 phase. अगर आपसे पूछा जाए कि जो G0 phase क्या होता है तो उसके बारे में हम समझते हैं. देखिए, in adult human being there are many cells, right? There are many cells जिनमें regularly division नहीं होता है, right? So in adult human beings there are many cells which do not divide रेगुलरली. एग्जाम्पल हार्ट सेल्स, राइट. तो ये डू नॉट डिवाइड रेगुलरली एंड दीज सेल्स, राइट, दीज सेल्स डिवाइड्स, राइट, ओकेजनली टू रिप्लेस द इंजर्ड एंड डेड सेल्स, राइट. और ऐसी सेल्स जो है वो इनएक्टिव फेज में चली जाती हैं जिसको क्या कहते हैं, G2 या क्विसेंट स्टेज कहा जाता है. क्लियर. तो सम इन एडल्ट ह्यूमंस some cells, right, some cells are not divided regularly, उनका occasionally ही जो है division होता है because of damage, right. तो डैमेज को रिप्लेस करने के लिए, इंजरी को रिप्लेस करने के लिए ही इनमें क्या होता है, डिवीजन होता है. और ऐसी सेल जो है वो इनएक्टिव फेज में और G2 फेज में क्या करती है, एंटर कर जाती है. नेक्स्ट क्या हो जाएगा, M फेज हो जाएगा, right. So M phase is the meiotic phase or the phase of equational division as the cell undergoes complete reorganization to give birth to a progeny that has same number of chromosomes as the parent cells, right. तो सबसे पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि जो सेल डिवीजन है उसका एक्चुअली डिवीजन कब होता है, तो वो एम फेज में होता है. सो एम फेज इज द फेज ऑफ सेल डिवीजन वेयर एक्चुअली सेल डिवीजन अकर्स एंड दिस इज द मिटोटिक फेज और द फेज ऑफ इक्वेशनल डिवीजन. इक्वेशनल डिवीजन क्यों, क्योंकि इसमें सेल अंडरगोज अ कंप्लीट रीऑर्गेनाइजेशन, सेल का कंप्लीट रीऑर्गेनाइजेशन होता है एंड अ सिंगल सेल, right, give birth to a progeny that has same number of chromosomes, right. और उसमें क्रोमोसोम्स सेम होते हैं, right. कैसे, जितने क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल्स में होते हैं उतने ही जो है न्यू सेल में होते हैं या डॉटर सेल में होते हैं, और वह जो सेल है वो टू और मोर देन 2 सेल्स में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है. The other cell organelles are divided equally by the process of cytokinesis which is preceded by meiotic nuclear division. तो ध्यान रखें कि जो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो साइटोकाइनेसिस माध्यम से ही क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं. द meiotic phase is divided into 4 overlapping stage. First is प्रोफेज, सेकेंड इज मेटाफेज, थर्ड इज एनाफेज एंड फोर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर, टीलोफेज हो जाएगा, राइट. ये फेजेस से एग्जाम में क्वेश्चन जो है नाम मात्र के बनेंगे, बट मैं आपको ये पूरी की पूरी प्रोसेस समझा दे रहा हूँ सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, राइट. तो सेल डिवीजन में क्या होता है, सबसे पहले चीज तो ये है कि सेल ग्रोथ, राइट. जब सेल में ग्रोथ होती है और सेल मैच्योर हो जाती है, राइट, तो उसमें जो सेंट्रोसोम होते हैं वो सबसे पहली चीज तो क्या होते हैं, अपीयर होते हैं, राइट. सो ड्यूरिंग सेल डिवीजन फर्स्ट इज सेंट्रोसोम्स अपीयर्स, राइट. तो ये दो सेंट्रोसोम्स क्या हो जाते हैं, अपीयर्स हो जाते हैं, राइट. इसके साथ ही तो सबसे पहले तो क्या होता है, सेंट्रोसोम्स अपीयर हो जाते हैं, साथ ही साथ जो स्पेंडल
पोल्स होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शंस पर चले जाते हैं, तो जो सेंट्रोसोम्स हैं वो अपीयर होकर स्पिंडल पोल्स के रूप में जो है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं, राइट। आफ्टर दैट जो है सिस्टर क्रोमोसोम फॉर्म होती है, अर्थात जो जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट, उनका ही डुप्लीकेशन होता है, राइट, रेप्लिकेशन होता है, तो सिस्टर क्रोमोसोम जो है फॉर्म होते हैं। उसके बाद में जो स्पेंडिकल पोल्स होते हैं, जो स्पेंडिकल पोल्स होते हैं वो सिस्टर क्रोमोसोम को अपनी अपनी ओर खींच लेते हैं। तो इस तरीके से ये जो सिस्टर क्रोमोसोम्स हैं ये स्पेंडिकल जो पोल्स होते हैं, राइट, स्पेंडिकल पोल्स की वजह से क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। फिर तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये जो एनाफेज है, एनाफेज में ये जो पूरे के पूरे जो सिस्टर क्रोमोसोम होते हैं वो दोनों स्पेंडिकल पोल्स पर चले जाते हैं। फिर जो टीलोफेज होती है, टीलोफेज में फिर ये क्या होते हैं कि ये पूरे के पूरे जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये एक जो है सीधी डायरेक्शन में आ जाते हैं, और सीधी डायरेक्शन में जैसे ही आते हैं वैसे ही क्या हो जाता है, डिवीज़न हो जाता है, और इस तरीके से सेल का क्या होता है, डिवीज़न हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, प्रोसेस हो जाएगी, राइट। चलिए अब नाउ वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहां से समझिए कि वी हैव टू कीप इन द माइंड दैट वी हैव टू फैच द गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, राइट। तो अभी तक जो है जो जितना भी जो पोर्शन है आई हैव टॉट यू बिकॉज ऑफ basic knowledge. You must have basic knowledge regarding how the cell division occurs. But इसके बाद में ये जो जितना भी मैटर है इसको आपको स्किप नहीं करना है, राइट। वेदर अगर आपको ये जो है थोड़ा समझने में अगर इफ यू आर हैविंग डिफिकल्टी तो आप इसको जो है एक तरीके से छोड़ भी सकते हैं, राइट। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन यू हैव टू रिवाइज इट, राइट, यू हैव नो ऑप्शन बट टू रिवाइज इट बिकॉज राइट फ्रॉम वेयर यू वुड गेट गुड मार्क्स, right, from where you will get marks, right. So now we will study types of cell division. So there are 3 types of cell division. First is amitosis, which is also known as binary fission, then mitosis, then meiosis. What is amitosis, right? So amitosis is a cell division in which nucleus becomes elongated and splits and separates into, राइट, सेपरेट्स, और जब न्यूक्लियस का सेपरेशन हो जाता है तो उससे 2 सेल फॉर्म हो जाती हैं, उसको ही क्या कहा जाता है, अमीटोसिस कहा जाता है। तो अमीटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन विच न्यूक्लियस becomes elongated and splits and separates, right, and in this way 2 daughter cells are formed is known as amitosis, राइट। अब इसको अमीटोसिस क्यों कहा जाता है, देखिए अमीटोसिस जो है, अमीटोसिस जिसको क्या कहा जाता है, कैरियोस्टेनोसिस भी कहा जाता है, राइट। तो कैरियोस्टेनोसिस भी कहा जाता है, या डायरेक्ट सेल डिवीजन भी कहा जाता है, या बाइनरी फिजन भी कहा जाता है, राइट। is cell proliferation that does not occur by mitosis. तो चूंकि ये मिटोसिस प्रोसेस से नहीं होता है इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अमीटोसिस से कहा जाता है। तो you have to keep in the mind 3 facts. First is the process of cell division in which the nucleus becomes elongated and splits and separates is known as amitosis, or we can say that the process of cell division जिसमें सेल का proliferation होता है that does not occur by mitosis, उसको ही अमीटोसिस कहा जाता है। अमीटोसिस is also known as कैरियोस्टेनोसिस और डायरेक्ट सेल डिवीजन और बाइनरी फिशन, राइट। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रेमेक, तो ये किसके द्वारा देखा गया था, रेमेक के द्वारा दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल क्या है, सो दिस टाइप ऑफ डिवीजन अकर्स इन बैक्टीरिया, फंजाई और क्या हो जाएगा, एल्गी हो जाएगा, राइट। तो एल्गी है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, राइट। तो बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, राइट, जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है उसमें अमीटोसिस के माध्यम से ही क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, राइट। तो अमीटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन विच न्यूक्लियस बिकम्स elongated and splits and separates and divides,
राइट और इस तरीके से 2 सेल्स बनती हैं और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में या स्पेशली जो डेवलप्ड अनडेवलप्ड जो सेल्स होती हैं उसमें ये सेल डिवीजन होता है. फॉर एन एग्जांपल दिस अकर्स इन बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गी. एग्जांपल फिशन और मिटोसिस इन अमीबा. नेक्स्ट हो जाएगा मिटोसिस डिवीजन. Right? So mitosis division is a type of cell division which occurs in somatic cell resulting in the formation of diploid daughter cells. Right? अब यहाँ पर somatic cell का मतलब क्या हुआ? The cell which is other than reproductive cell. और रिप्रोडक्टिव सेल क्या होती हैं? अगर हम बात करते हैं मेल में, तो मेल में जो मेल गेमीट होती हैं उनको क्या कहते हैं? स्पर्म. राइट तो स्पर्म क्या हो जाएंगे? जो है रिप्रोडक्टिव सेल्स हो जाएंगी. वैसे फीमेल क्या हो जाएंगे? एग्स. और जो सिंगल्स एग्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? ओवम. तो ओवम और जो स्पर्म है यही क्या कहलाती हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स कहलाती हैं. तो द सेल्स अदर देन रिप्रोडक्टिव सेल्स आर नोन एज सोमेटिक सेल्स. तो सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी. राइट The cell division which occurs in somatic cells resulting in the formation of diploid daughter cells is known as mitosis cell division. जो mitosis cell division होता है उसमें number of the chromosomes in daughter cells remains the same. तो इसमें चूंकि जो diploid डॉटर सेल्स होती हैं साथ ही साथ इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? समान होते हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मिटोसिस सेल 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड. राइट इट वाज डिस्कवर्ड बाय वाल्थर फेल्मिंग इन एनिमल्स. Right, important for MCQs. So the mitosis was discovered by Walther Fleming in animal cell. Right, also it was discovered by Strasburger in plant cells. Right, mitosis refers to the division of nucleus. Right, earlier it was considered that if there is a division in nucleus then this is mitosis. But currently mitosis means the division of both nucleus as well as cytoplasm. Now we will see the feature of mitosis. What are the features of mitosis? First is the mitosis. The mitosis cell division occurs in somatic cells. As a result of mitosis, 2 cells are formed from single cell. Also, there is no change in the number of chromosomes. Right? The following are the stages of the mitosis. First is interphase, then prophase, then metaphase, then anaphase, then telophase. Right? And we have understood these phases of mitosis. What is the importance of mitosis? देखिए मिटोसिस द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन जिससे जो सोमेटिक सेल्स से 2 सेल क्या होती हैं? फॉर्म होती हैं. राइट और इसी की वजह से बॉडी में क्या होती है? ग्रोथ होती है. राइट हम एक एक करके समझते हैं. सबसे पहली चीज तो ये है कि थ्रू मिटोसिस राइट 2 new cells are formed. Right, so first importance is that through mitosis cell division 2 new cells are formed from a single somatic cell. और इसकी वजह से ही जो ऑर्गन है या टिश्यूज हैं वो क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं. फॉर एन एग्जांपल दिस इज अ बेबी. राइट उसकी हाइट में भी क्या होगा? इंक्रीज होगा. राइट और उसकी लेंथ में या वेट में भी क्या होगा? इंक्रीज होगा. तो जैसे जैसे एज होगी वैसे वैसे इसकी हाइट में, हेल्थ में, मसल्स में क्या होगा? इम्प्रूवमेंट होगा. अब आप समझिए कि अगर इम्प्रूव होगा तो जाहिर सी बात है, जैसे मैंने कहा कि छोटे बच्चों की उंगली छोटी होती है फिर जी ये बड़ी हो जाती है. तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस जो ये यहाँ पर जो सेल्स है यहाँ पर सेल्स में क्रोमोसोम्स भी वही है विच मीन्स दैट यहाँ पर क्रोमोसोम्स भी कितने हैं? 46 ही हैं. और यहाँ पर ये जो पेरेंट सेल्स हैं उनसे न्यू डॉटर सेल्स फॉर्म हुई है. इसीलिए जो पाम की स्किन है ये डिफरेंट है, ये स्किन डिफरेंट है, यहाँ की स्किन जो है डिफरेंट है. तो कुल मिलाकर ये है कि जो मिटोसिस है उसी की वजह से न्यू ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड. राइट न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड.
और जब सेल्स या ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं तो उसी की वजह से ही जो बॉडी है वो क्या करती है, ग्रोथ करती है, ग्रोथ होती है। साथ ही साथ जहां कहीं पर भी देयर इज अ डैमेज और इंजरी, तो वहां पर इंजरी क्या होती है, रिपेयर होती है। फॉर एन एग्जांपल यू आर प्लेइंग, राइट, यू गॉट इंजरी हियर, राइट, या बर्न हो गई है यहाँ की स्किन, तो कुछ दिन बाद मिटोसिस से ही वहां पर नई स्किन आ जाएगी, राइट। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मिटोसिस, right? So mitosis is the process of cell division in which two new daughter cells are formed from a single somatic cell, right? And it is through this division new tissues, organs are formed. Also the body of living beings is formed and there is a growth of the living beings. Also जो organs हैं उनका repair भी किससे, तो there is a repair and repair of organs as well as cells take place through the mitosis. Clear? Next is meiosis, right? Meiosis is the type of cell division, right, which occurs in reproductive cells, resulting in the formation of haploid gametes, right, that participate in the fertilization, right? अब मैंने आपको बताया था in the previous lecture, in the previous lecture we have discussed about the determination of sex in humans, right? Let's study it and let's revise it ताकि आपको ये पूरा बहुत अच्छे से समझ में आ जाए. See, we have studied that the number of chromosomes in a particular organism is fixed or certain. For an example, there are 46 chromosomes in humans, right? These 46 chromosomes are found in 23 pairs of chromosomes, right? So there are 23 pairs of chromosomes in humans, or we can say that 46 chromosomes in humans. Clear? अब ये जो है 23 पेयर्स हैं, ये हर एक सेल में होंगे, चाहे वो सोमेटिक सेल हो, सोमेटिक सेल विच मीन्स दैट हमारे हेयर में, पाम में जो भी सेल पाई जाती है वो सोमेटिक सेल है, और रिप्रोडक्टिव सेल, राइट, रिप्रोडक्टिव सेल जैसे क्या हो जाएगा, स्पर्म या एग्स या ओवम हो जाएगा. अब अगर आप देखिए, अगर जैसे मैं एक हाइपोथेसिस लेता हूं, राइट, कि जो मेल गेमेट्स हैं जैसे स्पर्म है, राइट, और ओवम या जिसको एग कहा जाता है फीमेल में, इफ देयर इज 46 क्रोमोसोम्स इन स्पर्म एंड 46 क्रोमोसोम्स इन ओवम, राइट, सो व्हेन देयर इज अ फ्यूजन विल टेक प्लेस, राइट, या जिसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, तो उससे जो जाइगोट बनेगा, राइट, उसमें तो क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे, 92 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे. इस वजह से जो जेनेटिक स्टेबिलिटी है वो तो क्या हो जाएगी, जेनेटिक स्टेबिलिटी पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी. और दूसरी चीज ये है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम्स की संख्या जो है बढ़ती चली जाएगी, राइट. इसको ना हो इसीलिए क्या होता है, मियोसिस होता है. और मियोसिस में क्या बनते हैं, हैप्लॉइड बनते हैं. हैप्लॉइड का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये 46 क्रोमोसोम है, राइट, 46 जो क्रोमोसोम है वो हमेशा 2 के पेयर में पाए जाएंगे. कितना, 23rd पेयर, राइट. तो 23rd पेयर का 23rd जो है पेयर होंगे, तो हर एक पेयर का एक क्रोमोसोम होगा, राइट. तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 23rd बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. क्लियर. तो यहां पर अगर 23 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो इनको ही क्या कहेंगे, डिप्लॉइड कहेंगे, राइट. और अगर जैसे मैंने कहा कि 23 पेयर, 23 जो क्रोमोसोम है और ये 23 क्या है, क्रोमोसोम है, राइट, तब तो टोटल कितने होंगे, 46 होंगे ना. इसमें से एक जो 23 जो क्रोमोसोम है, राइट, ये ना होकर केवल और केवल ये 23 गुणसूत्र जो है या क्रोमोसोम अवेलेबल हों, इनको ही क्या कहा जाता है, हैप्लॉइड कहा जाता है. कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे अलग अलग होंगे, नहीं, जो 46 क्रोमोसोम है उनमें से 23 क्रोमोसोम होंगे जो कि इन 23 के पेयर में से एक होगा, तो इनको क्या कहा जाता है, हैप्लॉइड कहा जाता है. अब उसका फायदा क्या होगा समझिए, जैसे टोटल क्रोमोसोम कितने, 46, और जब मियोसिस होगा,
मियोसिस होगा तो मेल में जो टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं उसमें से 23 क्रोमोसोम्स अवेलेबल रहेंगे स्पर्म में, और वैसे ही फीमेल के जो एग है या ओवम है उसमें भी 23 क्या रहेंगे, क्रोमोसोम रहेंगे। अर्थात जो मेल है उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन 23 क्रोमोसोम में रहेगी, जो फीमेल है उनकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन 23 क्रोमोसोम में रहेगी। व्हेन देयर इज अ फ्यूजन, राइट, जिसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, राइट। तो फर्टिलाइजेशन में ये 23 और ये 23 जब मिलेंगे तो टोटल जो है 46 क्रोमोसोम या 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे किसमें, जाइगोट में। और जाइगोट से ही फिर क्या बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा, विच मीन्स जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें फादर के और मदर के दोनों के ही जो है जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, मौजूद होंगे। साथ ही साथ जो ऑफस्प्रिंग है उसमें टोटल क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 46 ही होंगे। इसका मतलब ये जो क्रोमोसोम्स की संख्या, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल रिमेन्स 46 इन द ऑफस्प्रिंग। सेकेंड थिंग इज दैट कि इस मेथड से दोनों के, फादर के और मदर के जो ट्रेट्स हैं वो न्यू ऑफस्प्रिंग में या बच्चे में आ जाएंगे, राइट। तो इसी वजह से जो है मियोसिस होता है। क्लियर, ये पूरी मेथड थी, अब तो बाकी का वही बचा है। तो हैप्लॉइड गैमेट्स आप समझ गए होंगे, राइट। तो Meiosis is the process of cell division which occurs in reproductive cells resulting in the formation of haploid gametes. इसका मतलब 23 क्रोमोसोम ही बचते हैं, राइट। आधे बचते हैं लेकिन 46 के एक के आधे, राइट। तो इस तरीके से it occurs in the reproductive cells resulting in the formation of haploid gametes, right, that participate in the fertilization. Right? In this division, the number of chromosomes in the daughter cells reduce to half, right? Half that of the parent cells. जो parent cells है उसमें कितने होते हैं, 46 है, और इसमें जो है 23 chromosomes ही बचते हैं। बट ये कैसे होते हैं, haploid होते हैं, right? So in this division, the number of chromosomes in the daughter cells is reduced to half, right? That of parent cell, which is necessary for maintaining the same number of chromosomes in sexually reproducing organisms। जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ये हाफ नहीं होंगे तो ऑफस्प्रिंग में या बच्चे में जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें 92 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। तो इससे तो क्या होगा, क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, राइट। तो इससे क्रोमोसोम्स की संख्या भी क्या रहती है, जो है 46 ही रहती है, right? And in this division, the nucleus is divided twice, resulting in the formation of 4 daughter cells, right? As a result of which the number of chromosomes is reduced to half that of the parent cells. तो इसमें कितनी daughter cells बनती हैं, 4 daughter cells बनती हैं। It was discovered by Bozeman, right? And it was named by Farmer and Moore. Right, now we will see the features of meiosis. The first is the meiosis division, right? What are the features? The first is meiosis cell division occurs in reproductive cells. Second, in meiosis 4 daughter cells are formed from a single reproductive cell, right? The number of chromosomes is reduced to half, 23 haploid, right? And this division takes place in 2 phases. Clear? The twice division occurs in the nucleus, resulting in the formation of 4 daughter cells, right? कितनी daughter cells बनती हैं, 4 daughter cells बनती हैं, and ये 2 phases में होती है। जैसे सबसे पहले meiosis first होगा, फिर interphase first होगा, prophase first, metaphase first, anaphase first, telophase first. In the same way, meiophase second, then interphase second, like prophase second, metaphase second, anaphase second, and telophase second, right? फीचर्स ऑफ मियोसिस, तो अगर हम बात करते हैं मियोसिस फर्स्ट की, तो मियोसिस फर्स्ट इज डीजनरेटिव डिवीजन एट द एंड ऑफ विच 2 सेल्स आर फॉर्म्ड, और साथ ही साथ जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ बचते हैं। तो मियोसिस फर्स्ट इज डीजनरेटिव डिवीजन, राइट।
जिसमें दो डॉटर सेल क्या होती है, फॉर्म होती है, साथ ही साथ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज हाफ्ड. नेक्स्ट meiosis second, right? Meiosis second is homologous division, which means meiosis division भी meiosis first के समान ही होता है, और meiosis second में भी वही होगा, 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होंगी जिसमें क्रोमोसोम्स कैसे होंगे, हाफ होंगे. इन दिस वे व्हेन meiosis occurs, right, 4 daughter cells are formed from a single reproductive cell. इंपोर्टेंट क्या होता है, इंपोर्टेंट को मैंने अभी आपको बहुत बताया है. सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, जेनेटिक स्टेबिलिटी, राइट, और जो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द नेक्स्ट जनरेशन, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द नेक्स्ट जनरेशन थ्रू मियोसिस इज द सेम एज दैट ऑफ पेरेंट जनरेशन. ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो मियोसिस सेल डिवीजन की वजह से ही जो न्यू ऑफस्प्रिंग होते हैं उनमें जो क्रोमोसोम की संख्या है वो कितनी होती है, पेरेंट के समान होती है. अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल जो है ह्यूमन का लिया है इसलिए 46 है, राइट. बाकी जो जितने भी एनिमल्स हैं उनमें जितने भी क्रोमोसोम्स होंगे उनकी भी क्या होंगी, सेम प्रोसेस होगी. जैसे लेट्स से अगर किसी एनिमल है, कोई भी XYZ है, कोई ऑर्गेनिज्म है जिसमें टोटल कितने हैं 20 क्रोमोसोम है, तो 20 क्रोमोसोम भी जो है 10 के पेयर में होंगे, राइट. तो जब ये मियोसिस होगा तो इसमें से मेल में 10 बचेंगे, फीमेल में 10 बचेंगे, और जब दोनों का जाइगोट बनेगा तो 10 प्लस का 10 कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे. तो इस तरीके से जितने उसमें थे उतने ही क्रोमोसोम उस ऑर्गेनिज्म में बचेंगे. तो पहला इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द नेक्स्ट जनरेशन थ्रू मियोसिस is the same as that of parent generation. And second, genetic stability is maintained through this division. और इस division की वजह से ही the offspring has genetic characteristics of both mother as well as father, right? Now we will summarize this topic as difference between meiosis and mitosis, right? We have studied mitosis in depth and we have studied meiosis in depth. तो इसमें जो अंतर है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, राइट. चलिए हम एक एक करके यहाँ पर समझ लेते हैं ताकि आपको पूरी तरीके से यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बने तो वो आपसे पूरी तरीके से क्वेश्चन बनना चाहिए, MCQs आपका गलत नहीं होना चाहिए, राइट. सो हियर इज मिटोसिस, here is meiosis. The first is mitosis. Cell division occurs in somatic cell, right. So mitosis cell division occurs in somatic cell, which means other than reproductive cells, right, resulting in the formation of diploid, right, diploid daughter cells, right, whereas meiosis occurs in reproductive cells resulting in the formation of haploid gametes that participate in the fertilization. Second is कि जो mitosis है, right, mitosis division completed in only one phase, right. तो जो mitosis है वो एक फेज में ही कंप्लीट हो जाती है, whereas this division is completed in 2 phases, right. Third is this mitosis division occurs once in the nucleus but the number of chromosomes remains the same, right, whereas in meiosis the nucleus divide twice resulting in the formation of 4 daughter cells. As a result the number of chromosome is reduced to half, right. Fourth क्या हो जाएगा, the prophase, right. The prophase in this division are relatively simple and of short duration, whereas the prophase is divided into 5 sub stages: leptotene, zygotene, right, फिर पिचेटीन, राइट, डिप्लोटीन, राइट, और डिकिनेसिस हो जाएगा. तो ये आपको याद रखना, जो प्रोफेज है वो 5 सब स्टेजेस में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, right. In the mitosis cell division there is no crossing over, so no kismata is formed, और इसी की वजह से जेनेटिक जो है जेनेटिक चेंजेस नहीं आते हैं, और इसमें एक तरीके से जो भी सेल्स बनती हैं वो पेरेंट सेल की ही क्या होती हैं, क्लोन होती हैं. whereas due to the formation of schismata
and crossing over differences are found in the daughter cells. इसी वजह से जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उसमें कुछ जेनेटिक चेंजेस देखने को मिलते हैं. In this division, the chromosome in the centromere are arranged on the mid plate and are dichromatic. Right? In the metaphase first, the chromosomes become chromatic. Right? Chromatic, where in metaphase second, the mitosis is the same. Right? फिर मिटोसिस की अगर हम बात करते हैं तो इन दिस मिटोसिस डिवीजन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल्स रिमेन्स द सेम. तो इसमें मिटोसिस में क्रोमोसोम्स कितने रहते हैं? सेम रहते हैं. बट इन मियोसिस क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस्ड टू हाफ इन डॉटर सेल्स. राइट? As a result of mitosis, 2 daughter cells are formed, and as a result of meiosis, 4 daughter cells are formed. फिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है? द इंपॉर्टेंस ऑफ मिटोसिस इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर. तो मिटोसिस की वजह से ही जो जितनी भी सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं या ह्यूमन बॉडी है, राइट, उनमें ग्रोथ होती है, एज वेल एज जो डैमेज टिश्यू सेल्स हैं वो रिपेयर होते हैं. वेयर एज मियोसिस इज इंपॉर्टेंट टू कीप द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स. और सेकेंड क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन इन organisms. Right? So in this way we have studied the difference between the mitosis cell division and meiosis cell division, as well as we have finished the topic of cell division. So in this way we have studied different types of cells, we have studied different parts of cell structure, we have studied different organelles of cell, and at last we have studied cell division. Right? So we have studied the topic of cell in depth. Right? Now we will meet in upcoming lecture. Till then, thank you.